Assalamu alaikum and welcome to mathematics class for standard 6th, chapter 1, knowing our numbers, revision. Students, as in a very short while you are going to have your internal assessment. So for internal assessment you will be having 3 chapters from maths. Chapter 1, knowing our numbers. Chapter 2, whole numbers, and Chapter 9, data handling. These 3 chapters are there in your syllabus of PT1. Students, this video is a short recap of Chapter 1, knowing our numbers. In this video, you are going to go through the whole chapter in a quick manner. Okay, students, and in the description below of this video you are going to have all the detailed explained videos of this chapter with all parts. So if you want to have a detailed explanation, you may go through the description box link and can watch all the parts which are related to this chapter. So let's begin with our numbers. Students, what are numbers? All this are numbers, right? But in a definite definition form, if you're going to write it is like this. A number is a mathematical object used to count, measure and sometimes also label it. Now, we have certain things to be done with these numbers. We arrange them. As we start knowing the numbers, the very first thing comes for us is to arrange them in two orders. The one is ascending order and the other is descending order. So if you arrange the numbers from smallest to the greatest, then it is said to be an ascending order. अगर आप छोटे नंबर से स्टार्ट करें और बड़े तक चले जाएं तो आपने उन नंबर्स को ascending order में अरेंज किया है. And just a vice versa of this, इसका बिल्कुल opposite. If you have arranged the numbers from greatest to the smallest one, then it is said to be the descending order. So let's have one example. Arrange the following weights in ascending and descending order. The weights are like this. These are all weights. They all are in kgs as they are in weights. Okay. So 25 kg. So I had not mentioned the kg unit after every number. What we have to do with these numbers, we have to arrange these weights in ascending, that is from smallest to largest, and in descending, that is from largest to smallest order. Let's start arranging. Ascending order. Our first number, the smallest one among this list is 10. Then 25. Then 37. And after every number you have to put the less than sign. Because 10 is less than 25. 25 is less than 37. 37 is less than 43. 43 is less than 59 and so on. That means you are going arranging all these numbers from smallest to the largest one, which is 105. Now just the opposite of this is descending order. We start from the largest and instead of putting the less than sign, now we are going to put the greater than sign. That means 105 is greater than 94, is greater than 81, is greater than 59. Now all these numbers are selected from the given list and we have arranged it. Okay, so this is how you go with the numbers arranging order in ascending and descending form. The next we do is the number formation. Now what we do else with the numbers? We arrange them in ascending and descending order, and what else you can do with the numbers? You can name them. Now for the naming, what we need, right? For number formation, first of all you should know that we have single digits numbers. It starts from 1 digit, then it went to 2 digit and then from 3 digits. So every sequence is followed and in ascending order it is followed. Now from 1 to 9 we have all single digit number which are 1 digit. Okay, but the last 1 digit number is 9 and the first 1 digit number is 1. That means 1 is the smallest 1 digit number
and 9 is the greatest one digit number. But as you put 1 or you add 1 to the greatest one digit number, it becomes 2 digit. यानी 9 plus 1 आपने 10 बना दिया. अब 10 जो है वो 1 डिजिट नंबर नहीं रहा, अब वो 2 डिजिट नंबर हो गया है, क्योंकि उसके पास दो नंबर्स हैं, एक है 1 और एक है 0, तो 2 डिजिट नंबर हो गया. अब 10 जो है ये 2 डिजिट हो गया है और ये 2 डिजिट की स्टार्टिंग है, यानी 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. और जैसे जैसे आप लेके चले जाएंगे, यानी गो ऑन फर्दर 11, 12, 13 सो ऑन 99 तक. सो 99 आपका क्या हुआ? ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. और आप जैसे ही इसमें सिर्फ 1 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 100 और ये 100 होगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. अब इस स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से अगर हम फॉरवर्ड जाते चले जाएं तो हम लोग 999 तक आ जाएंगे, यानी 999. दिस इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर. जैसे ही आप इस ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे, अब वो टर्न हो जाता है 4 डिजिट में और ये स्टार्टिंग है 4 डिजिट की, यानी 1000 जो है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है. अब अगर आप इसकी पैटर्न देखें तो कुछ इस तरह होगा. ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर प्लस 1 गिव्स स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर add 1 gives you smallest 3 digit number, that is 100. Greatest 3 digit number adding 1 give you smallest 4 digit number. Greatest 4 digit number 9999, when added with 1 it gives you smallest 5 digit number. Greatest 5 digit number, when added with 1 it gives you smallest 6 digit number, that is 1 lakh. Greatest 6 digit number, when added to 1 it gives you smallest 7 digit number. Greatest 7 digit number, when added with 1 it gives you the smallest 8 digit number, and so on. So you could see, students, that the greatest numbers are always having only 9s in them and the smallest ones are having zeros, but the starting is 1. That means every time it begins with 1 and the digit then continues with the zeros. If it is 2 digit, so 1 with 0. 3 digit smallest, that means 1 with 0 0, and so on. I hope, students, you followed. Now, as I said, the naming of the numbers is now beginning. You are going to name it, that at what position, that is, we can say that place values. So for place values we have these kinds of arrangement. That means our beginning numbers are ones, then after 2 digit number when it enters into tens, then 3 digit numbers are there, they enters into hundreds. After 3 digit we have 4 digit numbers, they enters into thousands, and 4 digit numbers after they add 5 digit numbers into lakhs, and after 5 the 7 digit numbers comes in crores. Okay, so this is how the arrangement of numbering system is done. We have these place values. Now, how to put commas for place values? See, we cannot every time draw the table, right? So for that reason, to remember, we have, the maths have used commas to represent the place values. We use commas in large numbers to ease reading and writing. For our reading and writing of the numbers should become easy. In our Indian numeration system and international both, the commas have been used. But the systems follow the rules separately. Here I am teaching you only the Indian numeration system. In this slide we are going through only Indian numeration system, in which we are using ones, tens, hundred, thousands, and then on. But how we use commas, you know? We put commas after first 3 digit, that is ones, tens and hundreds. सबसे पहला कॉमा जो आएगा वो 100 के बाद आएगा, towards the left side. यानी जो 100 होंगे वो कहाँ होंगे? राइट साइड में होंगे. The
first comma is after 100 place which is 3 digit from the right, 1 2 3 digit. The second comma comes after 2 digit, that means the thousands comes in this 2 digit, that is 5 digits from the right. So 3 here and thousands have two cells here. Here I am having 2 cells, that is thousands and 10,000. तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यानी अब जो कॉमा आएगा वो यहाँ आएगा आफ्टर 5 डिजिट. थर्ड कॉमा जो है वो अगेन 2 डिजिट, दैट मीन्स यहां से 2 डिजिट लैक की होगी, यानी लैक के कॉलम में फिर से 2 सेल होंगे, एक होगा लैक और एक होगा 10 लैक, इसीलिए एक सिंगल कॉलम है. और ये होंगे अब टोटल 7 डिजिट. देखिए 1 2 3, मैंने कहा इसमें 2 हैं यानी 4 5, और मैंने कहा इसमें 2 हैं यानी 6 7, यानी अब जो कॉमा आएगा वो 7 के डिजिट के बाद में यहां आएगा. ये कॉमा क्या कर देता है, इनको ग्रुप कर देता है, यानी ये जो 100 एंड 10s एंड 1s है इनको एक साथ हम लोग रीड करते हैं. थाउजेंड्स वाले जो होते हैं वो डबल जो 2 डिजिट के होते हैं उनको एक साथ हम रीड करते हैं. लाख में जो 2 डिजिट के होते हैं उनको एक साथ हम रीड करते हैं, और इसी तरह करोड़ और करोड़ के 2 डिजिट को हम एक साथ रीड करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट एन एग्जाम्पल. दीज आर द नंबर्स. हमें नहीं पता कौन कौन से प्लेस वैल्यू पर है. ओके चलो हम यहां पर इस टेबल के अंदर इन्हें अरेंज कर लेते हैं. सो 0 है वंस में, ये 1 इस सेल में लिख दिया तो टेंस में, नेक्स्ट 7 इस सेल में लिख दिया जो हंड्रेड्स में है, ये 3 मैंने थाउजेंड्स में लिख दिया. मैंने कहा ना यहाँ पे 2 सेल आएंगे, थाउजेंड्स में 2 डिजिट होती हैं, यानी हम 3 और 4 ऐसे लिखेंगे, 3 और 4 थाउजेंड्स के अंडर में लिखेंगे. उसी तरह 9 और 5 जो है वो लैक्स के 2 कॉलम में आ जाएगा, 9s में और 5 में. एक्चुअली लैक के अंदर भी 2 डिजिट होती है. और लास्ट बचा 2 जो करोड़ में आएगा. राइट अब हम लोग इसको देखो रीड करते हैं. अब रीड करने से पहले हम इनमें कॉमास डाल देते हैं. इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में पहले 100 के बाजू में यहां कॉमा आता है, यानी 7 के लेफ्ट साइड में आएगा. फिर थाउजेंड्स के कॉलम के खत्म होने के बाद आएगा, यानी ये हो गए 3 डिजिट. अब 5 डिजिट के बाद में आएगा, यानी यहां पहले 3 डिजिट के बाद में, बाकी हर बार 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट के बाद में कॉमा आते चले जाते हैं. ओके तो अब आएगा इन 2 डिजिट के बाद यहां पर, यानी 5 के पहले अब कॉमा लग गया. अब हम इनको आराम से रीड कर सकते हैं. ये करोड़ वाला कॉलम है, ये लाख्स वाला कॉलम है, ये थाउजेंड्स वाला कॉलम है, और 100 और 10 तो हम एक साथ ही पढ़ते हैं, है ना. 100 में सिंगल डिजिट ही आता है, 100 में कभी भी 2 डिजिट्स नहीं आते. ओके इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में अब हम लोग इसे लिखते हैं. दिस इज 2 crore 59 lakh. I said that we have to read them together. जो ये 2 डिजिट होगी ना हमें उन्हें एक साथ पढ़ना होगा. अगर एक में यहां सपोज 0 होता है और ओनली 9, तो आप सिर्फ 9 लाख बोलेंगे, 09 लाख नहीं बोलेंगे. हाँ बट यहाँ पे 9 हो या यहाँ पे 5 और यहाँ 0 हो तो 5 लाख नहीं बोलेंगे, तब हम लोग 50 बोलेंगे, बिकॉज 50 स्टैंड्स फॉर 50. अंडरस्टूड. सो 59 lakh. दिस इज अगेन अ कॉमन सेल ऑफ 1000. सो ये होगा पूरा 43,000. 700, and again these 2 columns are spoken together, that is 10s and 1s are spoken together, we can say that they are 10. Understood. Now the next slide will show you the naming of large numbers according to the international numeration system. अब हम लोग international numeration system को go through करेंगे. Now what they have here, 1s 10s 100 thousands. अब thousands का सेल थोड़ा बड़ा हो गया है ना. वो इसलिए बड़ा हो गया कि अब तक हम लोग थाउजेंड्स में 2 सेल इंट्रोड्यूस करते थे, यानी 2 डिजिट के नंबर आते थे. ये इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में होता है, लेकिन इंटरनेशनल में 3 डिजिट आते हैं. कितने डिजिट आते हैं? 3 सेल्स आएंगे एक 1000 में. उसी तरह मिलियंस में भी कितने आएंगे? 3 आएंगे. यानी इंटरनेशनल सिस्टम कॉमा हमेशा 3 डिजिट के बाद ही फॉलो करता है, और इंडियन सिस्टम जो है वो पहले 3 के बाद फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाए जाते हैं इंडियन में. इंटरनेशनल में तो वेरी इजी, हर 3 डिजिट के बाद में कॉमा आएगा. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी द रूल. In international numeration system, we use ones, tens, 100,000 and then millions is come. We don't follow crores in international system. We follow millions. We don't follow lakh. Okay, lakh की जगह पे millions आते हैं. Okay, और crores की जगह पे billions आते हैं. Okay, we'll see that afterward.
Now we use first comma after hundreds place which is 3 digit from right. हम लोग पहले यहाँ पे comma लगाएंगे. Then the second comma after more 3 digits यानी ये पूरे thousands को cover कर लेगा यानी 6 digit from the right. Okay, so this is how we are going to follow. So let's see the example of the same numbers I have taken here. Let's arrange them. You could see 0, 1s और 7s जो हैं यानी 1s, 10s और 7 जो हैं वो मैंने इस तरीके से लिख दिए हैं. 3, 4, 9 thousands में आ जाएंगे और 5 और 2 millions में आ जाएंगे. अब कॉमा कैसे होगा? सबसे पहले 3 डिजिट के बाद में यानी 7 के पहले कॉमा लग गया. अगेन 3 डिजिट लगेंगे यानी 9 के पहले यहाँ पे कॉमा आ जाएगा. एंड दैट्स ऑल. हमें और 2 के बाद में तीसरा नंबर ही गिवन नहीं है ना, तो हम लोग कॉमा लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, राइट? यानी हम लोगों का ये स्टॉप होता है. अब हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे? 25 मिलियन के अंदर है तो हम लोग कहेंगे 25 मिलियन. 943 3 डिजिट का नंबर है तो हम लोग इसको 943 बोल सकते हैं, वरना ओनली 43 बोलते हैं, है ना? 943 thousands में है तो हम कहेंगे 943 thousands. और ये जो सिस्टम है ना, ये 700 और 10, ये तो इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में भी सेम ही पढ़ी जाती है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी सिमिलर वे में रीड होती है यानी 710. तो देखिए अब हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं 25 millions 943,710. Understood, student? This is how we are going to name the numbers. Now, numbers operations. नंबर नेम करने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं हमारे नंबर्स के अंदर वाले 4 ऑपरेशंस. 4 ऑपरेशंस हैं. पहला है एडिशन, फिर है सब्ट्रैक्शन, फिर है मल्टीप्लिकेशन और फिर है डिवीजन. एडिशन में हम क्या करते हैं? बड़े से बड़े नंबर्स हो हम उनको दोनों को प्लस करते हैं एंड वी गेट द आंसर. यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, हमने बड़े से बड़े 2 नंबर्स लिए हैं और उनको ऐड किया है. सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? हम बड़े से बड़े 2 नंबर्स ले सकते हैं, लार्ज नंबर्स है ना, इसलिए बड़े बड़े 2 नंबर्स लेंगे, हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. एज यू नो सब्ट्रैक्शन फॉलो द सिमिलर रूल्स कि अगर 1 से -3 नहीं हो सकता, वी कट इट, वी पुट 11, यहाँ से डिडक्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड सो ऑन, है ना? इसको माइनस करने पर आपका आंसर आएगा दिस. नाउ फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स हम मल्टीपल्स करेंगे, राइट? 9 से मल्टीपल होगा ये पूरा नंबर एंड वी आर गोइंग टू गेट दीज आंसर्स. व्हेन फॉर 0 वी गेट ऑल जीरोज एंड फॉर 1 वी गेट ऑल वंस. हाँ, 0 10s की पोजीशन पर है तो हमें एक 0 एक्स्ट्रा देना होगा और 100 की पोजीशन पर है तो हमें यहाँ पर 2 zeros एक्स्ट्रा देने होते हैं एंड वी गेट आवर आंसर. What for division? We divide the numbers. Let's divide the bigger number with a bigger table. 16 2s are 32. Subtract करने पर 1 बचेगा and this 6 will come down. 16 1s are 16 और subtract करने पर 0 0. Understood? So these are the 4 operations we are going through with the numbers. अब estimation method. एस्टिमेशन मेथड एक क्वाइट इजी वे है. हम लोग सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि हमारा आंसर किस हद में आएगा. ओके, सो एस्टिमेशंस होते हैं. एक होता है वेरी नियर क्लोजर टू 10s. अगर आप क्लोजर 2 डिजिट नंबर होंगे तो हमें 10s के कितने क्लोज है उसके बारे में पूछा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 11 लिया हुआ है. सो क्वेश्चन पूछा गया है इज 11 इज क्लोजर टू 10 और 20. हमें ये देखो नंबर लाइन मैंने बनाई है और आपको ये बताना है. ये 11 मार्क कर दिया है. अब सोचिए 11 किसके बहुत करीब है. हमें राउंड नंबर्स लेने हैं. राउंड नंबर्स किसको कहते हैं? जिनमें जीरोस हो ना उनको राउंड नंबर्स कहते हैं. तो हमारे राउंड ऑफ नंबर्स हैं 10 एक्सट्रीम पर लेफ्ट और 20 एक्सट्रीम राइट पर है. अब हमें ये सोचना है 11 किसके बहुत करीब है, 10 के या 20 के? बताइए. करेक्ट, 11 is very close to 10. तो जब हमें 11 को राउंड ऑफ करना होगा ना हम उसकी जगह पर 10 लिखेंगे. यानी हम उसको वो जिस होल नंबर के करीब होगा हमें राउंड ऑफ करते वक्त वो करीब वाला होल नंबर ही हमेशा लिखना होगा. ये तो मैंने आपको 10s की बात की, राइट? हंड्रेड्स में भी ऐसा ही होगा. लेट्स सी फॉर 100s चार्ट. दिख रहा है आपको यहाँ पर एक रेड कलर की मार्जिन बनाई गई है. यानी 0 से 4 तक जितने भी नंबर्स होंगे ना वो इस 0 के करीब होंगे और 5 से लेके 9 तक जो होंगे ना वो 10 के करीब होंगे. ओके, अब अगर 10 से बढ़ जाते हैं यानी 11 12 13, अगर 10 हुआ तो 10 इटसेल्फ इज अ राउंड नंबर, आपको 10 ही लेना है.
आपको 10 को किसके नजदीक है वो सोचना ही नहीं है. राउंड ऑफ नंबर्स आर राउंड ओनली. ओके, सो होल नंबर्स आर होल, जीरो वाले को सोचने की जरूरत नहीं रहती. ओके, अब 11 से 14 है वो किसके करीब होंगे? 10 के. और 15 से 19 जो है वो किसके करीब होंगे? 20 के. अंडरस्टूड. और इसी तरह ये हमारे 100 के चार्ट्स में हम लोग देखेंगे कि राउंडिंग अप टू 100. चलो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. हम लोग यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहे हैं. 786 है. ओके, यहाँ पे हम लोग को नियरेस्ट 10 में करना है, यानी हम लोग 100 का तो देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ टेंस वाले दो नंबर देखेंगे. 86 ये रहा. देखिए 86 किसके बहुत करीब है? एक एक्सट्रीम है 86 के इस तरफ और एक एक्सट्रीम पर है 90. अब 86 किसके बहुत करीब है? देखो रेड मार्जिन के इस तरफ आ गया है, यानी ये 90 के करीब है. यानी ये जो होगा ये होल नंबर होगा 790 कर देंगे हम लोग. अंडरस्टूड. उसी तरह 537, जैसे हमें 100 तो राउंड ऑफ करना नहीं है ना, हम लोग सिर्फ 37 को देखेंगे. 37 ये रहा, रेड मार्जिन के राइट साइड आ चुका है और ये एक्सट्रीम 40 के नजदीक है. 30 काफी दूर रह गया, तो 37 के लिए हम राउंड ऑफ करते वक्त क्या लिखेंगे? 40. यानी हम ये लिखेंगे 500 की जगह पे जो है वो सेम ही लिखेंगे, आएगा 540. हम लोग 100 की पोजीशन पे जो भी नंबर है उसे बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे. नाउ सी 844. 44 इज हियर, है ना. 5 के बाद से उस तरफ चले जाते हैं. करेक्ट. तो अब हम लोग लिखेंगे 44 किसके करीब होगा? 40 के. सो ये हमारा राउंडिंग ऑफ होगा 840. नाउ कम टू 46. देखिए यहां पर ये 50 के करीब आ गया है, क्योंकि अगर 44 होता तो 40 के करीब होता. मार्जिन सेट करती है कि हम किस के करीब हैं. ये मार्जिन आपको एग्जैक्टली बताती है कि आपको किस तरफ से सोचना है. 44 के उस तरफ हो तो डेफिनेटली आप उसको 40s में ही काउंट करिए. जैसे ही 45 में आ जाते हैं यू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, दैट इज 50. अंडरस्टूड. तो 246 है, यानी हम लोग राउंड ऑफ करेंगे 50 पर. हमारा आंसर आएगा 250. Now look at this 95 here. 100 के करीब आ गया, यानी 800 plus 100 will give you 900. Understood? 712 ये रहा, है ना. किसके करीब है? 10 के. So राउंडिंग ऑफ करते वक्त हम लिखेंगे 710. Now for 786 कहाँ है? ये रहा, वेरी क्लोज टू 90, यानी हम लोग लिखेंगे 790. 675 कहाँ है? ये रहा, रेड मार्जिन के राइट साइड है, यानी हम किसके करीब आ गए? 80 के. सो हमारा राउंडिंग ऑफ होगा 680. 708 ये रहा, वेरी क्लोज टू 10, क्योंकि इस मार्जिन पर इस तरफ आ गया है, तो ये होगा हमारा 710. Rest of all is homework for you students. You do it by yourself. Okay. Let's move on for the rounding off of thousands now. अब हम लोग thousands को सोचते हैं. अगर thousands सोचेंगे तो हमें hundreds के राउंड ऑफ मिलेंगे. ठीक है, ये देखिए, हाँ यहाँ पर 40 है ना, तो 44 की लिमिट होगी. ओके, 45 किस तरफ कंसिडर होगा? डेफिनेटली 50 की तरफ कंसिडर होगा. अब ये फिर हम लोग वो उसकी तरफ फॉलो करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने 100 के चार्ट्स में किया, राइट. अब यहाँ पर भी अब देख सकते हैं कि हम लोग अगर 40s में हो तो 500 के करीब हैं या इस तरफ वाले एक्सट्रीम के करीब है. जैसे ही क्रॉस करते हैं 545 तो ये इस तरफ आ जाते हैं, है ना, और वो इस तरफ के लिए राउंड ऑफ के करीब होते हैं. आई होप आपको ये चार्ट दोबारा समझाने की जरूरत नहीं. इट इज फॉलोइंग ओनली द 3 डिजिट नंबर्स. बाकी पूरा रूल सेम है फॉर एज वी हैव फॉलोड फॉर हंड्रेड्स. नाउ दिस इज फॉर थाउजेंड्स. कुछ सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पर 465 है, हमें ईच टू द नियरेस्ट 100 में करना है. तो थाउजेंड्स का किया है हम लोगों ने 400, यानी ये जो 465 है वो इनके करीब होगा. हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, वी आर वेरी क्लोज टू 500. ओके, नाउ वी कम टू 945. 945 इस तरफ आ जाएगा. वी आर वेरी क्लोज टू thousands. Correct. Now we come to 902. 2 is very close to 10. So we will write 900. Right? क्योंकि 2 जो है वो बहुत करीब है 900 के, जैसा हमने 10 में देखा था. Then for 123 we are very close to 100.
For 834 we are close to 800. For 391 बहुत बहुत आगे चले गए, 391 we are very close to 400. Okay, and so on and so forth. You will do the rest of all by yourself. Now the next topic dealing with number is Roman numbers. हम हमारे बहुत सारे नंबर्स को रोमन वे में लिखते हैं. जैसे अगर हमें हमारे स्टैंडर्ड्स बताने हो, वी आर बिलोंगिंग टू फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, तो उनका लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, 1 V X L C D M लाइक दैट. एक्चुअली ये सेट किया गया है, एक सिस्टम है, एक रूल है. मैं आपको बताती हूँ अभी वो रूल क्या है. लेट अस फर्स्ट देख लें कि रूल में हमारे पास लेटर्स या कितने होते हैं. हमारे पास लेटर्स सिर्फ इतने ही ले सकते हैं हम, I V X L C D M. I का मतलब होता है 1. हम इतने ही लेटर्स का यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रोमन नंबर्स लिखने के लिए. ओनली दिस 7 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स का यूज करना है. I V X L C D M. I है 1, V है 5, X है 10, L है 50, C है 100, D है 500 और M कहा जाता है thousands. अब इनके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स फॉलो कर लेते हैं. When a symbol appears after a large or equal symbol, it is added. यानी जैसे कि अभी यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है V1. एक्चुअली V क्या है, 5 है, और 1 क्या है, 1 है. अगर किसी बड़े नंबर के राइट साइड में छोटा नंबर आ जाए तो याद रखना आपको ऐड करना है, हमेशा ऐड करना है. अगर लार्जर के बाद स्मॉलर वाला ये लेटर प्लेस किया हो तो आपको ऐड करना होगा. दैट इज 5 + 1 6 कहलाएगा. ओके, उसी तरह L जो है वो 50 है और X जो है वो 10 है, यानी LXX है. यानी ये 50 के बाजू में 10 और 10 लगाए दिए गए हैं, यानी ये 50 के बाद लार्जर नंबर के बाद स्मॉलर नंबर 10 आता है तो ऐड होगा L + X + X, यानी 50 + 10 + 10 विल गिव यू 70. कब, जब लार्जर नंबर के राइट साइड में स्मॉलर नंबर आए तो. सपोज अगर उसके पहले आए तो तब हम क्या करेंगे. नाउ व्हेन अ सिंबल अपीयर्स बिफोर ए लार्जर नंबर or equal symbol, it is subtracted. That means here you can see it is 1V. Actually 1 is 1 and V is 5. Right? So for this what we are going to do, we are going to subtract it. That means V minus 1, that is 5 minus 1 will give you 4. In the similar manner, when X is written 10 in front of L, that is 50. 50 is larger, 10 is smaller, but then also placed before 50. So if it is placed before 50, that means we are going to subtract it from 50. That is 50 minus 10 will give you 40. Okay, and one more important rule, that don't use the same symbol more than 3 times in a row. You don't have to use the symbol more than 3 times. That means here if it is LXX, that means X is repeated, see, 2 times. That means 50 plus 10 plus 10. You can add one more X. That is LXXX. That is 50 plus 10 plus 10 plus 10. Then it will stand for 80. Correct? But not more than 3 times. You cannot go beyond 3 times. Okay, and this is some of the examples from 1 to some of the 100. See, 1 is written like this, 2, 3, repetition 3 times over. Then for 4 what we write? V minus 1, that is 4. V means 5. For 6 we add going beside 1. So V plus 1, V plus 2, V plus 3 is 8. And for 9 we write 10 minus 1. Because 1 is I and X is 10. Before place किया है तो minus होगा. ओके, देन 10 is 10. 20 के लिए हम 2x रिपीट कर सकते हैं, 30 के लिए हम 3x, लेकिन 40 के लिए हम बिल्कुल भी 4x नहीं लिख सकते. तब हम लोग क्या करेंगे? 50 minus 10.
फिर 50, फिर 50 प्लस 1, फिर 50 प्लस 2, 50 प्लस 10, 50 प्लस 20, 50 प्लस 30, 80 तक आ गए। अब जैसे ही 90 कर आते हैं हम लोग सीधा 100 में से 10 माइनस कर देंगे और 100 होता है C, करेक्ट। Understood? So this is how it is done. Now let us take one of the example and convert it into a Roman numeral. आपको नंबर दिया गया है 1984 यानी 1984। अब हम इसके लिए इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो 1000 में है इसीलिए 1000, 900 में है इसीलिए 900, 80 है यानी टेंस में है तो 80 और 4 जो है वो वंस में है इसलिए 4। ओके, अब इनको हम कन्वर्ट करते हैं लेटर्स में जो कि हम लोग रोमन न्यूमर्स में यूज करते हैं, है ना। IVXLCDM ये 7 लेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो 1000 को हम M गिनते हैं। 900 क्या होगा, 1000 में से 100 माइनस होगा। 1000 में से 100 माइनस होगा इसका मतलब 100 हमें 1000 के पहले लिखना होगा। यानी ये M अगर 1000 है और सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें C उसके लेफ्ट साइड में लिखना होगा, क्योंकि अगर आप राइट साइड में लिख दोगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। हमें माइनस करना हो तो हमें लेफ्ट साइड में लिखना होगा। अब 80 है यानी 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये हमें पता है, हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। और 4 है, 4 के लिखेंगे 5 माइनस 1, तो इसीलिए 1 को हमें V के लेफ्ट साइड में प्लेस करना पड़ेगा। ये हमने देखो इन सबको ब्रेक करके ये सारे हमने इस तरीके से उसके लेटर्स निकाल लिए। अब हम इन सबको अगर ऐड करें तो हमारा यही नंबर आएगा। जिस तरह हम इन सबको ऐड करें तो ये नंबर आएगा, इसी तरह हमें इन सारे लेटर्स को एक के बाद एक इस तरीके से लिख देना है, M CM LXXX N4, है ना। देखिए इसका चार्ट रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है। ये मैंने एक थोड़ा सा ग्राफ तरीके से आपको ड्रॉ करके बताया है कि किस तरीके से 1000 का M यहाँ प्लेस हो गया, 900 का CM यहाँ प्लेस हो गया, LXXX 80 के लिए बिल्कुल बाजू में लिख दिया गया और 4 लिख दिया गया। आपको सिर्फ इनको ज्वाइन कर देना है बस। अंडरस्टूड? और ये हो गया आपका नेमिंग ऑफ अ नंबर इनटू अ रोमन न्यूमरल। Understood, student? So this is what whole chapter is dealing with. Thank you, student, for watching the video. I hope, student, you have enjoyed the short recap of the whole chapter. But student, as you know, for detailed explanation, you will see the description box of this video. Below this, you are going to find all the videos, that is all the parts of chapter 1, knowing our numbers. Have a great day ahead, students.